Hello friends, welcome to you and me. Today we are going to start with a new subject, that is mercantile law according to PTU syllabus. Under this particular subject we are going to study the 5 acts that is known as Contract Act, Partnership Act, Sales of Goods Act, Negotiable Instrument Act as well as Consumer Protection Act. So first of all, let's start with the first chapter act, that is the Indian Contract Act 1872. Under this we are going to start with the first chapter, that is nature of contract, and under this we are going to study the definition of this particular contract act, essential elements of a valid contract and types of contract. So let's start with the definition. The law relating to contract is governed by the Indian Contract Act 1872. The acts came into force on the first day of September 1872. The preamble to the act says that it is an act to define and amend certain parts of the law relating to contract. It extends to the whole India. As per section 2H of the Indian Contract Act 1872, contract means an agreement enforceable by law. So यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट as well as agreement. So first of all, to start with the definition of a contract, let's start what is agreement, what is contract, what is promise. So first of all, let's start with these particular terms. So first we are starting with the proposal. The term proposal, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain for doing anything with a view to obtaining the assent to that other to such act, he is said to make a proposal. जब हम लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी क्या है हमारे पास, when one person signifies to another, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है his willingness to do, उसकी willingness कुछ काम करने की या फिर उसको किसी काम को रोकने से, with a view to obtaining the assent, वो दूसरे व्यक्ति की मर्जी चाहता है, to such an act he is said to make a proposal. वो क्या कर रहा है, दूसरे को प्रपोजल दे रहा है. Suppose if I said to Mr. A that I want to sell my car, तो ये क्या है, एक प्रपोजल है जहां पर मैं क्या चाहती हूँ कि जिसको मिस्टर ए को, अगर मैं कार के लिए बोल रही हूँ कि मैं अपनी कार जो है वो आपको सेल करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मेरी इंटेंशन है, माई विलिंगनेस, हिज विलिंगनेस टू डू, मेरी विलिंगनेस है कि वो व्यक्ति क्या करे, मेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले. तो जब हम कोई भी एक प्रपोजल, एक ऑफर किसी को देते हैं कोई काम करने के लिए, और वहां पर मेरी इंटेंशन होती है कि उस चीज को दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल बोलते हैं. सो दिस इज नोन एज प्रपोजल. यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति दूसरे को क्या कर रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, कोई काम करने के लिए बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. तो दिस इज नोन एज प्रपोजल. नाउ व्हेन अ प्रपोजल बिकम अ प्रॉमिस, एक प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस कब बन जाता है, व्हेन the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. जब ये व्यक्ति जो ऑफर दे रहा था, इस व्यक्ति ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो फिर मेरा क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया. तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं. When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. So a proposal when accepted become a promise. So there are two parties, one is promiser and another one is promisee. Now the come to the point, the person making the proposal is called the promiser. जो व्यक्ति प्रपोजल को दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिसर बोलते हैं. एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी. अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो ए ने बी को बोला आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹2 लाख.
तो ए ने जब बी को बोला कि मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं और बी कहता है कि ठीक है मैं आपकी ये कार खरीदने के लिए तैयार हूं, तो यहाँ पर ए कौन हो गया? प्रोमिसर, और ए बी कौन हो गया? प्रोमिसी हो गया। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। तो यहाँ पर ये जो प्रपोजल है वो क्या बन गया है? प्रॉमिस बन गया है। अब हमारे पास थर्ड टर्म आती है कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन का मतलब क्या है? When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or absenteeism और promise is called a consideration for the promise। अब ये पढ़ने में हमें बड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा शब्द लग रहे हैं, डेफिनेशन लग रही है। When at the desire of the promiser, the promisee or any person has done, जब प्रोमिसर की डिजायर पर प्रोमिसी ने कोई काम कर दिया हो या उसको करने के लिए वो उसको मना रहा हो, promises to do or to abstain from doing, और वो प्रॉमिस करता है कि ये काम करने के लिए, करने के बदले मैं आपसे कुछ लूंगा, तो फिर वो क्या बन जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं इस डेफिनेशन का मतलब। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, कंसीडरेशन मींस कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई भी काम करवाता है और उसके बदले में कोई चीज ले लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। दैट मीन्स द समथिंग इन रिटर्न। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? समथिंग इन रिटर्न। जब हम कुछ चीज जो है वो क्या करेंगे, कुछ उसके बदले में हम ले लेते हैं। समथिंग इन रिटर्न इज नोन एज कंसीडरेशन। तो यहां पर वी कैन से समथिंग इन रिटर्न। अब यहां पर ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार। हम पिछले एग्जाम्पल पर जा रहे हैं। 2 लाख रुपए में उसने कार बेचनी चाहिए। तो ए ने बी से क्या लिया? 2 लाख रुपए लिए, और बी ने उसके बदले में क्या ले लिया? उसकी कार ले ली। तो कार और वो 2 लाख क्या है? कंसीडरेशन है फॉर ए एंड बी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing, promises to do, प्रॉमिस करता है कि वो और कुछ करेगा प्रोमिसर की इच्छा से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन बोलते हैं। अब हमारे पास 3 चीजें हो गई, प्रपोजल, प्रॉमिस और कंसीडरेशन। जब एक प्रॉमिस में कंसीडरेशन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। अब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रॉमिस के अंदर एक कंसीडरेशन को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा अग्रीमेंट बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। जनरली जितने भी लोग होते हैं ना हमारे यहाँ पर, हम लोग सभी क्या करते हैं? हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को इकट्ठा यूज करते हैं। हम इन वर्ड्स को बार बार यूज करते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में इन सब का मतलब डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर अग्रीमेंट क्या है? अ सेट ऑफ प्रॉमिस which involves the consideration। तो जब मैं प्रॉमिस और कंसीडरेशन को, यानी प्रॉमिस, जब हमारे पास प्रॉमिस और कंसीडरेशन जो है वो ऐड हो जाए, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, ये हो जाया तो ये क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया मेरा एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज एन एग्रीमेंट। अब जब एग्रीमेंट है उसमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाए
तो फिर वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है। मान लो आप किसी दुकान के ऊपर गए, आपने वहां पर कोई शर्ट परचेज किया, उसके बदले में आप क्या लेते हो, वहां से बिल परचेज कर लेते हो। अब घर आए, घर आके आपने शर्ट को चेक किया, उसमें हल्का सा छेद था या वो शर्ट जो थी वो कहीं से फटी हुई थी। यू गो बैक टू द शॉपकीपर, आप उसको बोलते हो कि ये शर्ट जो है वो फटी हुई है, आप इसको एक्सचेंज कर दो। तो उस शॉपकीपर को, क्योंकि आपके पास बिल है, आपके पास प्रूफ है कि आपने वो शर्ट जो है वो परचेज किया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सचेंज करवा सकते हो। यू कैन कंपेल टू दैट पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। तो जब आप अपने किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसको आपने ऑफर दिया है, जिसको आप कुछ करने के लिए बोल रहे हो, अगर वो व्यक्ति वो काम को परफॉर्म नहीं करता और लॉ के थ्रू, आप लीगल राइट्स के थ्रू आप वो काम करवा लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी वो व्यक्ति जो है उसको वो काम करना पड़ेगा ड्यू टू द लीगल फॉर्मेलिटीज। तो जब हम किसी एग्रीमेंट में, जहां पर दो पर्सन होते हैं, उन दो पर्सन में उस व्यक्ति को इन्फोर्स कर सकते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। So, contract is an agreement between two or more person creating right and duties between them which is enforceable by law. So, contract क्या है, contract एक agreement है दो लोगों के बीच जो उनको कुछ right देता है और duties देता है, जिसको वो क्या कर सकते हैं, enforce कर सकते हैं by law. So, Pollitt defined contract as every agreement on promise enforceable by law at law is contract. According to section 2H of the Contract Act, an agreement enforceable by law is a contract. कोई भी agreement जो हम law के through enforce कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, contract बोलते हैं. So, from the above definition, it is clear that the contract consists of two elements, an agreement as well as the agreement should be enforceable by law. तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। अब हमने अभी पढ़ा what is agreement. According to section 2E, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, एक काम भी हो सकता है, बहुत सारे काम भी हो सकते हैं, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एक प्रॉमिस भी हो सकता है और बहुत सारे प्रॉमिस भी हो सकते हैं, जब वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। An agreement therefore come into existence only when one party make a proposal or offer to the other and the other signifies his assent, और दूसरा क्या कर रहा है, उसके लिए अपनी assent दे रहा है, अपनी acceptance दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीमेंट के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, वन ऑफर, second one is acceptance and the third one is that is the person is giving you the consideration. There must be consideration. तभी वो क्या बनेगा, प्रॉमिस क्या बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा। So from the above definition it is clear that for an agreement there must be plurality of persons. यहाँ पर क्या होना चाहिए, plurality of persons होना चाहिए। There must be two or more persons to make an agreement because one person cannot enter into an agreement with himself. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, कोई अपने आप से ही ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं करवा सकता। तो एक एग्रीमेंट में आपके पास दो पर्सन्स होने जरूरी है। कंसेंसस एड इडम, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स that both the parties to an agreement must agree about the subject matter of the agreement in the same sense and at the same time.
द टर्म कंसेंसस मीन आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ए है, उसके पास 2 कार्स है, मारुति भी है और होंडा सिटी भी है। वो अपनी कार जो है वो सेल करना चाहता है, दैट इज मारुति। वो बी के पास जाता है और बोलता है आई वॉन्ट टू सेल माई कार। अब उसने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया कि वो मारुति बेचना चाहता है या फिर वो होंडा सिटी बेचना चाहता है। अब ए ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू बी फॉर रुपीज 2 लाख। बी जो है वो क्या सोच रहा है कि शायद वो अपनी होंडा सिटी कार जो है वो बेचना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों के माइंड में कंफ्यूजन है। तो इसका मतलब कि जब भी कोई एग्रीमेंट होगा तो उस टाइम पर एग्रीमेंट इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम, ये जरूरी है कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। उसका मतलब सेम सेंस होना चाहिए और एट द सेम टाइम होना चाहिए। वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो कर रहा है मारुति के बारे में बात, और जब हम वहां पर ए की बात कर रहे हैं तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है होंडा सिटी के बारे में। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है दोनों के माइंड में। तो यहाँ पर कहने का मतलब एग्रीमेंट कब एग्जिस्टेंस में आएगा? जब दोनों व्यक्ति एक समय पर एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है? एग्रीमेंट बन सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? एग्रीमेंट, प्रॉमिस, प्रपोजल। तो अब आओ बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस forming consideration for each other. Enforceability by law, an agreement which creates the legal relationship on the part of the parties. Promise क्या है? A proposal when accepted become a promise. Price, consideration, price paid by one party for the promise of the other. Technical word meaning quid pro quo, something in return. तो consideration को legal language में क्या बोलते हैं? Quid प्रो क्यू। तो आज के टॉपिक में हमने 4-5 चीजें पढ़ी: प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन एंड इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। प्रपोजल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की ऑफर देता है कोई भी काम करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल बोलते हैं। जब वो प्रपोजल किसी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। यानी एक व्यक्ति ने ऑफर दी ए को कि मैं अपनी कार जो है वो सेल करना चाहता हूँ, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो क्या बन गया है? आपका प्रॉमिस बन गया है। अब जब वो प्रॉमिस जो है उसमें कंसीडरेशन को ऐड कर दिया जाए, कंसीडरेशन अभी मैंने बताया आपको, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। जब उस प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट क्या है? अ सेट ऑफ प्रॉमिस, और प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि जब आप एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हो, जब आप लीगली किसी व्यक्ति को इन्फोर्स कर सकते हो अपना काम पूरा करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो जब हम एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इसको मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों मिलकर मेरे लिए क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो आज हमने सिर्फ 5 टर्म्स के बारे में रीड आउट किया। 1 इज प्रपोजल, सेकंड 1 इज प्रॉमिस, थर्ड 1 इज कंसिडरेशन, फोर्थ 1 इज एग्रीमेंट, फिफ्थ 1 इज इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, और ये सब मिलकर हमारे लिए क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी की जरूरत है, यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू।